Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Constitution Law series by Law by Nilay Kumar, and this is your mentor and educator Nilay Kumar. Firstly, I want to begin this video by apologizing for not uploading videos for the past 1 week. Actually, I was unwell, and due to that, I was unable to make videos. As you all know, that for every video that I upload, it requires 5 to 6 hours of research work, self study, and then technical work, obviously. Right. So I could not do that. This PPT itself took me, and the preparation itself for this video took me around a week to do. So, yeah, that was due to my bad health. But now I'm feeling much better. So I'm going to continue with this on a regular basis now. I can't promise how many videos I'm going to upload, but yes, I'm going to do it on a regular basis now. Also, I want to acknowledge the fact first that Constitution Law series, Constitution Law as a course, is a very important and crucial subject to both of the exams, that is CLAT PG and UGC NET. Also, UGC NET 2024 June attempt, which happened on 18th of June, was cancelled on 19th of June, right after the exam, due to some issues with paper leaks and cheating. Right, the exam is still under investigation. So, there's gonna be a retest. That's what the Ministry of Education has announced, but they haven't released the dates for the retest. But I'm expecting that in the coming week, the dates for the retest shall be announced, and it might be taken in the month of July only. Right. So I understand that constitutional law is important for both of these exams. Therefore, I am telling you that in the upcoming 15 to 20 days, I'm gonna try my level best to finish the constitutional law series in toto. Right? I'm gonna finish constitutional law series, and if you're studying properly from my videos, from these constitution law series videos, then you do not need to refer to any book, any notes, or anything other than my video. Right? My videos are an all-rounder video. That's what I am saying. ये निलय का promise है. Right? So you don't need to refer to any other YouTube channel for constitutional law at least. Once I'm done with constitutional law, I'm gonna begin with other subjects as well. Right? So that's what I wanted to tell you. So you can relax and trust me on the at least constitutional law part. Right? So let's begin with this video. इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे. स्पेसिफिकली बताऊं तो आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ेंगे, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इसके फर्दर पार्ट्स में हम बाकी के फ्रीडम्स पढ़ेंगे. राइट? तो देर आर बेसिकली 6 फ्रीडम्स. फर्स्ट फ्रीडम अभी हम पढ़ेंगे, बाकी ये 5 फ्रीडम हम फर्दर पार्ट्स में पढ़ेंगे, विच शैल बी अपलोडेड momentarily. Okay, so let's begin. This is the bare provision of Article 19(1) actually. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. All citizens shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble peacefully and without arms, to form associations or unions or cooperative societies, to move freely throughout the territory of India. ये टू जो है ये एक्चुअली फुटनोट्स का है, ये रहने दो, इसको रिमूव कर दिया. Continuing, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business. Right? This is Article 19, Clause 1. Article 19 has 6 clauses. Right? आर्टिकल 19 has 6 clauses. 19(1) में जो बात की जाती है वो सारे फ्रीडम्स की बात की गई है. ठीक है? दिस इज एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम. अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो, वहां पे मैंने आपको फुल क्लासिफिकेशन बताए हैं कि आर्टिकल 19 to 22 इज कॉल्ड एज राइट टू फ्रीडम. नॉट 22 एक्चुअली. या 22. Right, 23 is the right against exploitation. Right. So 19, 20, 21 and 22 are known as right to freedom. अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में 6 क्लॉजेस हैं. फर्स्ट क्लॉज में आपको ये फ्रीडम दे रखे हैं. फिर
क्लॉज नंबर 2 से 6 तक, क्लॉज नंबर 2 से 6 तक जो है ये रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं जो इस आर्टिकल इन फ्रीडम्स पे इम्पोज किया गया है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज जरा देखो, मैंने लिखा है क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, एंड देन आई हैव स्किप्ड क्लॉज एफ एंड देन कम टू क्लॉज जी. This is actually not me doing it. This is the bare provision. So this is the government doing it. Now, what is the reason behind it? What is the reason behind it? First, I want you to understand that. Okay, what is the reason behind this? The reason is basically what has happened is there was clause F which talked about right to acquire, hold, एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी. डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है रेंट पे देना या फिर उसको आप सेल कर देना, किसी को गिफ्ट कर देना. ठीक है, सो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी. नाउ दिस वाज अ फंडामेंटल राइट. However, after the 44th Constitutional Amendment Act, please remember this, 44th Constitutional Amendment Act in 1970, this must be 1978, right? This amendment was brought in due to the protests by zamindars. Now, what was happening that, now you need to understand a little context here from the colonial history, right? During the British era, while we were under the control of Britishers, what used to happen was there was zamindari system हुआ करता था. Zamindari system में basically क्या था, zamindars as a term suggests they were owners of lots of lands, right? और जो farming होती थी वो ये लोग laborer से कराते थे. So the laborers were the ones who were actually working hard, and they were the ones who were responsible for the crops of India. But इनको पैसे कम मिलते थे और जमींदार इनसे पैसे कमाते थे, इनको जो भी क्रॉप्स उगते थे उनको बेच बेच के. ठीक है, एंड जमींदारी सिस्टम में बहुत खराब हालत थी. जो भी लेबर्स एंड पीजेंट्स काम करते थे, जो भी फार्मर्स काम करते थे, उनकी बहुत खराब हालत थी. उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती, बेसिक वर्क एटिकेट्स फैसिलिटीज जो भी होता है जो आज के ज़माने में हम लेबर लॉज में पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं मिलता था. इनफैक्ट दे वर बीटन, दे वर अब्यूज्ड, राइट? दे वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर 12 to 14 hours a day without any breaks, without any bio breaks. There were not proper washrooms provided to them, and interestingly, they were not given money a lot. ठीक है, many times they were not given money at all, राइट? तो ये प्रॉब्लम बहुत होती थी. प्लस जमींदार इनको एक्सप्लॉइट बहुत करते थे. तो इसके कारण क्या हुआ ना, जब इंडिपेंडेंस मिला तो इंडियन गवर्नमेंट का सबसे पहला जो स्कीम था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम करके गवर्नमेंट एक स्कीम चला रही थी. ठीक है, तो उसमें क्या कर रही थी, बेसिकली जमींदार के पास जो सारी की सारी जमीनें इकट्ठी कर रखी थी उन्होंने, ठीक है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जा रही थी. तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती थी इन जमींदारों से और उसके बाद रेक्विजिट पर्पसेस के लिए वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी. तो लैंड एक्विजिशन, ये सॉरी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका मेन पर्पस बेसिकली ये था कि सारी की सारी जो लैंड है विच इज बेसिकली वेल्थ, अ काइंड ऑफ वेल्थ, राइट, वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल दैट इज जमींदार्स में एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल लीड टू क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, that will create the difference between different classes of the society. So this was supposed to be reduced by the scheme. But the problem was Article 19F 1F provided for right to property. Now, if you have a fundamental right, how can it be violated by the state? The state cannot violate it. The state cannot do that. राइट, द स्टेट कैन नॉट जस्ट मेक अ लॉ एंड से दैट जमींदार के पास जितनी भी लैंड है उसका 20% लैंड अब स्टेट का हो जाएगा. यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, 1978 में 19 क्लॉज एफ को डिलीट किया गया और उसको आर्टिकल 300 ए में डाला गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में इसके वर्डिंग चेंज किए गए, वो बाद में आप पढ़ सकते हो इफ यू वांट. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर एट द मोमेंट.
right? Article 300A was inserted, but with safeguards such that a person can be deprived of his property, but only by a law made by the parliament. This is what is provided in Article 300A. So basically 300A में आपके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपके पास ऐसा नहीं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी हो और स्ट्रेट अवे आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट इस बिहाफ में कोई लॉ बनाती है पर्टिकुलरली, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई लॉ बनाती है और तब आपसे वो लैंड ली जाती है, एंड फॉर दैट यू विल बी गिवन प्रॉपर कॉम्पनसेशन। तो हमारे पास आपने देखा होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में हमारे मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो है एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रेल नेटवर्क्स, द दिल्ली मेट्रो, द रैपिड रेल नेटवर्क्स, इस तरीके के जो है, ठीक है। फिर आप मुंबई जैसे एरिया में चले जाओ, वहां पे भी आपको मेट्रो है, वहां पे भी आपको रेलवेज है, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या होता है ना कि जब भी गवर्नमेंट को कोई रेल नेटवर्क निकालना है या फिर कोई लैंड की जरूरत है, तो वो लैंड एक्वायर करते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वो लैंड एक्वायर करते हैं और प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाता है। सो बेसिकली यू आर बाइंग लैंड फ्रॉम द पीपल एंड देन यूजिंग इट फॉर योर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसलिए बहुत बार प्रोजेक्ट्स में काम होने में टाइम इसीलिए लग जाता है बिकॉज लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसीजर है ना वो कभी कभार लंबा हो जाता है, बिकॉज मे बी द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन एंड द seller, the owner of the land is not accepting that price, right? So it takes time. The entire Greater Noida, right? The entire Greater Noida, it is made on this land acquisition procedure only, right? सो आई होप आपको आर्टिकल 19F का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर याद कैसे करें। अब इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, आपको ये जो 19(1) ABCDEG है ना, ये आपको सीक्वेंस में याद होने तो चाहिए। ये क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए भी और यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद तो होना चाहिए। तो उसके लिए देखो एक तोड़ है, बहुत अच्छा एक्रोनिम नहीं है बट SAF-MRP बोलता हूं मैं इसको, ठीक है, साफ एमआरपी। आपको कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो दुकान पे, दुकानदार बोलेगा मैं आपको साफ एमआरपी पे दूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो आप इसको ऐसे ही याद रखो। तो योर S stands for freedom of speech and expression. I'm not gonna write the entire thing. I'm gonna just write the important things so that you can remember this, you can memorize this acronym, right? Then your A stands for assembly, right? Then your F stands for to form associations. As I said, I'm not gonna write the entire article here. I'm not gonna write the entire provision here. So please keep referring to your BEAR Act. So while you're studying with my video, always use a BEAR Act. Okay. Then you have form associations के बाद move freely throughout the territory of India. ठीक है। R से आपको हो गया reside and settle in any part of the territory of India. Right? And last आपका P हो गया practice any profession or trade or business or any occupation, right? तो ये आपके SAFMRP, इससे आपको याद हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगला मैं आपको ले चलता हूं, नीड फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम्स। ठीक है, अब मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको यहाँ पे कराना है। जो यूएस में जो फ्रीडम का फंडामेंटल राइट्स है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम लोग लेके आए हैं कॉन्सेप्ट। वी हैव अडॉप्टेड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूएस ओनली, राइट? Now in the US, the Constitution guarantees the rights in unqualified terms in the first 10 amendments of the Constitution. Right? In unqualified terms, they have no restrictions whatsoever.
right? But the necessity to put a restraint on them has compelled the US Supreme Court to invent the doctrine of police power. ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर जो है ये बेसिकली क्या है, बेसिकली यूएस सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स में एक जजमेंट आपको मैं बताता हूँ, जजमेंट का नाम है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट बात कर रहे हैं तो पूरी कर ही लेते हैं। पेन हैंडल वर्सेस स्टेट हाईवे, ये मैंने राइट साइड में कम स्पेस में क्यों लिखा, वेट, स्टेट हाईवे कमीशन, ईयर है 1935, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ओके, तो बेसिकली इसमें डिस्क्राइब किया गया है व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर। It has been described as the governmental power of self-protection, and it permits reasonable regulation of rights and property in particular essential to the preservation of the community from injury. अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है बेसिकली जब भी देखो आपके पास कोई राइट होता है तो आपके पड़ोसी के पास भी राइट है. Everyone has the same right. Now it cannot happen that while you are exercising your right, other person's rights are being violated. ठीक है, ये चीज होगा तो ये गलत है. इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस लगाना, डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर इसीलिए लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसीलिए इन्वेंट किया ताकि रीजनेबल रेगुलेशन किया जा सके ऑन पीपल्स राइट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इन प्रिजर्वेशन ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम इंजरी. इंजरी कैसे होगी? एक पर्सन अपनी राइट एक्सरसाइज करेगा ओवर द अदर. मान लो यूएस में मैं बोलता हूँ राइट टू लाइफ है मेरे पास, ठीक है, राइट टू लाइफ है मेरे पास, तो सेम चीज राइट टू लाइफ तो सामने वाले के पास भी है. तो आई कैन नॉट, मेरे पास राइट टू प्रोटेक्ट भी है. आई कैन नॉट जस्ट बी कि मेरा पड़ोसी क्रिमिनल हो सकता है, एक काम करता हूँ मैं गोली से जाके उसको पहले मार ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास राइट टू लाइफ और मेरे पास राइट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ है. लेकिन वॉट अबाउट द राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ऑफ दैट नेबर, उसके राइट का क्या? तो दिस विल क्रिएट अ क्योस, राइट. और इनके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस मेंशन नहीं थे. इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर पेन हैंडल वर्सेस स्टेट ऑफ हाईवे कमीशन 1935 की केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया. आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो. इंडिया में क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द लिबर्टी हैज टू बी लिमिटेड इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिवली एक्सरसाइज. ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है उनका स्टेटमेंट है ये, that in India the constitution recognizes the liberty and it has to be limited in order to be effectively exercised, right? So instead of formulating fundamental rights in absolute terms like the US constitution and depending on our Supreme Court to come to the rescue of parliament by inventing the doctrine of police power, the Indian constitution permits the state directly to impose limitations upon fundamental rights. ठीक है, तो हमारे हर फंडामेंटल राइट में कोई ना कोई लिमिटेशन होती है. दे माइट बी एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द प्रोविजन, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) के लिए आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, ठीक है. दे माइट बी मेंशन स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और दे माइट नॉट बी, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रेट करता है वेरियस केसेस के बेसिस पे. हमें समझ में आ गया है कि इस आर्टिकल पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है. व्हाट इज द रिस्ट्रेन ऑन दिस फ्रीडम, व्हाट इज द रिस्ट्रेन ऑन दिस फंडामेंटल राइट. आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई हो. अब हम आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में बात करेंगे, ठीक है. 19(1)(a) क्या बोलता है बेसिकली, इसको समझते हैं. नाउ आर्टिकल 19(1)(a) में द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस एंड सच फ्रीडम विल बी फ्यूटाइल इफ गारंटी ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट गिवन. नाउ इमेजिन आपको फ्रीडम टू थॉट एंड कॉन्शियंस दे दिया. फ्रीडम टू थॉट एंड कॉन्शियंस बेसिकली क्या होता है? जहां पे आपको सोचने की आजादी दी गई है, ठीक है, आपको सोचने की आजादी दी गई है, लेकिन उस सोच को एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं दी गई है. ऐसे केस में क्या होगा? अब आप इमेजिन करो, आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए,
आपको सोचने की आजादी दी गई है। मान लो आपको कोई स्टेट की पॉलिसी है एंड यू डू नॉट अग्री विद दैट स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो वैसे में क्या होगा, वैसे में आप उसके बारे में एक रिसर्च पेपर लिखते हो या फिर एक ब्लॉग या आर्टिकल लिखते हो दैट क्रिटिसिज्म दैट क्रिटिसाइजेस द स्टेट पॉलिसी या एनी स्टेट लॉ। ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस, ठीक है। लेकिन आपको अब वो ब्लॉग पब्लिश करने की पावर नहीं दी जा रही, आपको बोला जा रहा है वो अपने लैपटॉप में रखो, आपने एक्सप्रेस कर लिया ना, आपने थॉट, आपने सोच लिया ना, आपने लैपटॉप में रखो, आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर आपको फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस है जो आर्टिकल 91A में इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड नहीं है, क्या बोलते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, बट उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर नहीं मिलेगा तो ये जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस है इट्स गोना बी फ्यूटाइल इन नेचर। फ्यूटाइल इन नेचर कहने का मतलब है यूजलेस इन नेचर, राइट। नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ डेमोक्रेटिक सेटअप। A democracy functions upon public opinion, and public opinion is based upon information which reveals things about the surroundings. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम थॉट एंड कॉन्शियंस की बात कर ली, अब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो थॉट एंड कॉन्शियंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सब रिलेटेड ही है। तो आपको आजादी मिलनी चाहिए अपना ओपिनियन देने का भी। अब आपको सबको पता है कि डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, जैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपको अगर गवर्नमेंट का कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, पब्लिक को, जो पब्लिक है उनको वो काम पसंद नहीं आ रहा है, देन दैट गवर्नमेंट विल नॉट बी इलेक्टेड इन द अपकमिंग इलेक्शंस, right? They will not be elected in the upcoming elections. It will be reflected in the vote share. It will be reflected in the way that they might not be elected at all, or it will be reflected in that the number of seats they have gotten in the elections will be reduced in the upcoming elections, right? So these are all signs of showing to the government that देखो भैया हमें आपका काम पसंद नहीं आ रहा है, you need to work harder, you need to improve yourself, ठीक है। तो ये क्या है, ये पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन देने के मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल प्रोटेस्ट कंडक्ट करना, ठीक है। बहुत बार सिटीजंस प्रोटेस्ट करते हैं दैट वी नो वी डोंट अग्री। इफ यू रिमेंबर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके रिगार्डिंग काफी प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली एनसीआर में। इनफैक्ट नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर बट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, काफी प्रोटेस्ट हुए थे। तो वो क्या था, वो एक आप अपना ओपिनियन दिखा रहे थे बाय वे ऑफ प्रोटेस्ट। तो वो आप अपना फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहे थे, राइट। अब हम धीरे, तो यही मैं बोल रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक सेटअप, नॉट ओनली इंडिया बट इन जनरल डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं, दैट इज राइट टू नो, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टूल, this is also an important tool for the effective functioning of a democracy, right? क्योंकि right to know में right to disseminate information भी included है, ठीक है। कहने का मतलब ये, मैं एक्चुअली अब right to information act जो है उसके दायरे में घुस रहा हूं बेसिकली, ठीक है। right to information act बेसिकली क्या बोलता है कि आप गवर्नमेंट से, आप जो अपॉइंटेड अथॉरिटीज है, आप उनको एक लेटर लिखोगे, ठीक है, आरटीआई फाइल करोगे और उसके बाद विद इन 30 डेज वो आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मान लो अब आप जानना चाहते हो, जैसे कि लेट्स से दिल्ली में अभी आपको पता होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट, विच इज बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज बेसिकली हमारा नया पार्लियामेंट उसमें बना, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस उसमें नया बन रहा है, एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स किए जा रही हैं सेंट्रल दिल्ली में, ठीक है। जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको हटा के कुछ प्रॉपर परमानेंट स्ट्रक्चर्स, बेटर स्ट्रक्चर्स लगाए जा रहे हैं, राइट। तो अब मान लो, अब आप जानना चाहते हो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में टैक्स पेयर्स का कितना पैसा खर्च हो रहा है। अब ये आपका जानने का हक है, बिकॉज देयर इज आर्टिकल 19(1)(a), यू हैव द राइट टू नो, ठीक है। एंड वंस यू नो दिस,
You have the right to disseminate this information also because this is public in nature. आपको बताया गया मतलब पब्लिक है ना ये इंफॉर्मेशन. देयरफॉर इस इंफॉर्मेशन को अगर फर्दर आप मान लो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करते हो या फिर आप इसको एक ब्लॉग लिखते हो इसके बारे में, ठीक है, दैट इज राइट टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. ये इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो ये सारे मैं आपको इर्द गिर्द सारी बातें बता रहा हूं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, इस टर्म्स के अंदर आता है. ओके, अभी हम इसके बाद ना कुछ केस लॉज करेंगे, उन केस लॉज में सारे के सारे फ्रीडम्स आपको क्लियर हो जाएंगे. अब अगला क्वेश्चन आता है कि why is freedom term used only in article 19(1)(a) and not in any other clauses? This is a very interesting question. I don't know if you've observed this or not. अभी मैं आपको दिखाता हूं. ये देखो, सिर्फ यहां पे यूज हुआ है, बाकी किसी भी में देख लो फ्रीडम टर्म यूज नहीं किया गया. इंटरेस्टिंग ना? ऐसा क्यों? दैट्स द क्वेश्चन हियर. ऐसा क्यों है? इसके लिए वी हैव टू रेफर टू द जजमेंट ऑफ धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज ईयर 2004 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इस जजमेंट में बेसिकली the Supreme Court held that the word freedom has been used in 19(1)(a) and not in any other clauses. This suggests a wide interpretation has to be given to the freedom of speech and expression as compared to other rights. ठीक है, so reason क्या है freedom of speech and expression डालने का? मतलब ये है 19(1)(a) जो है उसको वाइड एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, उसका एम्बिट जो है वो काफी वाइड दिया जा रहा है. ठीक है, इट एज कंपेयर टू अदर फ्रीडम्स मेंशन्ड इन 19 क्लॉज बी, सी, डी, ई एंड जी. ओके, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी. इस मैंने आपको केस का नाम लिख दिया है और मैंने जो बोला है वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो. अच्छा, प्लीज मेक श्योर कि अब जितने भी वीडियोस मेरे बनेंगे उसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन पीपीटी में नहीं लिखूंगा. आई वांट यू टू बी अलाइव इन द लेक्चर, देयरफॉर I want you to be alert in lecture, so therefore I'm not mentioning all the sentences and all the facts here. I'm just mentioning the important things so that you can actually listen to my videos, listen to my voice and write it in your notebooks. Okay, it will help you memorize the thing there and there only. Clear? Now let us move on to the next slide. Another interesting question. Why is Article 19(1)(a) specially provided in the Constitution even though it would have been covered under Article 21? अब आपको ये भी पता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21 में, वो इतनी सारी चीजें कवर करता है दैट वी कैन नॉट इवन ट्राई टू लिस्ट इट डाउन. ठीक है, और उसका पर्पस ही वही है दैट यू कैन नॉट लिस्ट इट डाउन बिकॉज इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट लिस्ट. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ ही जाएगा. जिस तरीके की इंटरप्रिटेशन हमने पिछले 70 सालों से, हमारे 75 सालों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हमारे हाई कोर्ट्स ने किया है. ठीक है, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बहुत आराम से आर्टिकल 19(1)(a) इंक्लूड हो सकता है, लेकिन these have been distinctively put under an Article 19 as specific restrictions had to be declared for these rights. अब समझ में आए क्यों अलग से किया है? क्योंकि इनको अलग से कोई कंफ्यूजन ना हो, सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशनल इश्यूज ना हो, कम से कम इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हो, कम से कम कंफ्यूजन हो. इसके लिए लेजिस्लेचर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, सेपरेट आर्टिकल बनाया as far as possible. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में. इसका रीजन वही है बिकॉज हमारे यहाँ हमने देख लिया था कि इंटरप्रिटेशन इश्यूज जहां पे आते हैं ना, जहां पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, वहां पे इनजस्टिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है,
इसीलिए वो इनजस्टिस को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 को अलग कर दिया. They have agreed. If you read the debates of Constituent Assembly, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आप देखोगे एक वेबसाइट बनी हुई है गवर्नमेंट की Constituent Assembly डिबेट्स की, वहां पे आप देखोगे आर्टिकल 19 और 21 के डिस्कशन में दे हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड द फैक्ट कि 21 में 19(1)A इंक्लूडेड है, लेकिन हम 19(1)A अलग से क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज हमें इसको प्रॉपर दर्जा देना है, ठीक है, ताकि इंटरप्रिटेशन इश्यूज कम से कम हो फ्यूचर में, राइट? बिकॉज इन्होंने 1947 1946 में बनाया ये, और हम आज कहाँ बैठे हैं? 2024 में बैठे हैं. इतनी आगे की सोचना आसान बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने अलग से बनाया, ठीक है. और उनपे रिस्ट्रिक्शंस लगाने थे, तो स्पेसिफिकली 19(2) डाल के रिस्ट्रिक्शंस लगाने थे, इसीलिए 19(1)A को 21 में से कार्व आउट करके अलग किया गया. हाउएवर दिस डज नॉट मीन कि 21 में 19(1)A की फ्रीडम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन इसेंशियल facet of dignified life and it is essentially required as a matter of principles of natural justice, ठीक है. So 19(1) was provided specifically so that there would not be any disputes in courts over the interpretation of life and personal liberty, and to what extent do they include the rights provided under article 19(1), right? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी. Now let us move on to article 19(2), that is your grounds for restrictions. अब इसके लिए ये मैंने bare provision डाला है, इसको ध्यान से पढ़ो. Nothing in subclause A of clause 1, मतलब freedom of speech and expression, shall affect the operation of any existing law. इस पे ध्यान देना, the term use किया यहाँ पे law, और prevent the state from making any law. Again law की बात की जा रही है, कोई notification, कोई order की बात नहीं की जा रही है. Insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said subclause in the interests of, अब देखो ये grounds of restrictions दे रखे हैं: sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offense. Clear? तो sovereignty का मतलब क्या होता है? That is the freedom from any external force. So India is a sovereign nation, right? So we are free from any external force. हमारे ऊपर अब कोई राज नहीं कर सकता. So if any person is sharing any secrets of our country or defense documents with an external force, then you cannot claim that I have the freedom of speech and expression. You are violating the sovereignty of your country and you cannot claim कि नहीं, I have the freedom of speech and expression. मेरे पास तो information है, तो मैं इस information को disseminate भी करूंगा. क्यों? ये तो एक reasonable restriction है कि नहीं, right? Then integrity means a sense of unity. अब integrity, a sense of unity का मतलब, मान लो जिस तरीके की ये कम्युनल स्पीचेस दी जाती है, ये सेंस ऑफ यूनिटी जो है इंडिया में पब्लिक में खत्म कर रही है, ठीक है. आई एम नॉट pointing out any political party right now. This has been going on since the independence only. In fact, before independence also, the Britishers also did the same thing. They tried to separate Indians communally, हिंदू और मुसलमान के बीच में. They tried to do that, right? तो पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें चली आ रही होती हैं, आज भी चली आ रही हैं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं. कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है, राइट? तो मान लो XYZ पॉलिटिकल पार्टी कोई कम्युनल स्पीच देती है, या XYZ पर्सन कोई कम्युनल स्पीच देता है, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके कारण क्या हो रहा है? इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट हो रही है. जो हमारे देश के अंदर लोगों के बीच यूनिटी की भावना है वो खत्म हो रही है, वो उस पर असर ला रहा है. तो वैसे केस में क्या होगा? वैसे में दैट वुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. सो इफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग एनी लॉ रिगार्डिंग दैट और इज restricting your freedom of speech and expression in that case, then it would be reasonable to do so. फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ये तो काफी इजी सा टर्म है. आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सेम एग्जांपल अभी जो मैंने फर्स्ट में दिया था सॉवरेनिटी में, यहां पे भी सेम एग्जांपल अप्लाई होगा. अगर आप इंडिया की ऐसी इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे हो
विच कैन एक्चुअली हैम्पर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो ठीक है, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप कल हो कि ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आई हैव द राइट, मैं पार्लियामेंट के अंदर जाऊंगा, पार्लियामेंट के अंदर पूरी वीडियोस एंड फोटोज क्लिक करूंगा और मैं उसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा। नो, यू कैन नॉट डू दैट, because parliament is a sacred place, first thing. Second thing, parliament is a place where all the ministers gather, including the prime minister and sometimes the president also. So if you are publicly releasing the videos and photos of parliament, then the terrorist can get access to the inside of the parliament, and that is going to affect the security of the state of India, right? Then you have friendly relations of India with other countries. It should not be affected. ठीक है, अब आप किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते इन सच अ वे कि इंडिया के साथ अगर उनके अच्छे रिलेशंस हैं, मान लो इंडिया और यूएस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो और आप जो है ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हो यूएस के ऊपर विच कैन एक्चुअली अफेक्ट द फ्रेंडशिप, अफेक्ट द रिलेशन, गुड रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, तो वैसे केस में रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऐसे में आपको बता दूं, यूजुअली ये जो ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है ये बहुत कम यूज किया जाता है। अभी तक इसका कोई भी मेजर एग्जाम्पल नहीं है जो यूज किया गया हो। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ऑर्डर इज समथिंग जो बहुत बार यूज किया गया है। पब्लिक ऑर्डर, बस आप, मैं क्या बोलूं, मतलब आए दिन पब्लिक ऑर्डर 1902 में पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स वगैरह निकालती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती है, बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको लॉ पास करना पड़ता है। ठीक है, लॉ पास करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमारे यहाँ पब्लिक ऑर्डर के लिए सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी यूज किया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग कि घर से निकलना मना कर दिया गया। नो, नॉट लाइक दैट। 144 सीआरपीसी में बेसिकली क्या है ना कि मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर आप सर्टेन ऑर्डर्स इशू कर सकते हो अपने जुरिस्डिक्शन के लिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे फेस्टिवल्स जहां पे मल्टीपल रिलीजियस फेस्टिवल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज, इन सब के फेस्टिवल्स कहीं पे कुछ क्लैश कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं पे लग रहा है कम्युनल राइट्स होने वाले हैं, तो उस एरिया में आप लोग क्या करते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो। तो वहां पे आप नहीं क्लेम कर सकते कि आपने मेरे को बोलने से मना कर दिया, आपने मेरा इंटरनेट बंद कर दिया, आपने मेरे को इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने से मना कर दिया। नो, इट विल नॉट बी अलाउड, बिकॉज पब्लिक ऑर्डर की बात है। आपको याद होगी एक मूवी आई थी पद्मावती, जिसका नाम एक्चुअली ओरिजिनली पद्मावत कर दिया गया। ठीक है, पद्मावती में क्या हुआ था, पद्मावती में द राजपूत्स of Rajasthan and Madhya Pradesh, they were not happy with how the movie was shown. ठीक है, they were claiming that their religious sentiments were hurt. ठीक है, जो भी है, फैक्ट्स के पीछे भी नहीं जाना, अभी हम बस इतना जानते हैं their religious sentiments were hurt। तो उसके कारण क्या हुआ, हॉल्स में जाके जहां पे वो मूवी चल रही है वहां आग लगा दे रहे थे, वो हॉल्स में मूवी नहीं चलने दे रहे थे, तो एक पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया था। तो वैसे केस में काफी स्टेट्स में पद्मावती मूवी को बैन कर दिया कि हमें ये पब्लिक ऑर्डर, क्या नाम है, पब्लिक ऑर्डर हमारा अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे। अब संजय लीला भंसाली कैन नॉट क्लेम, और द एक्टर्स इन दैट मूवी लाइक दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, they cannot claim that our freedom of speech and expression are being affected. Their freedom of speech and speech were affected because ये एक क्रिएटिव तरीका है अपने क्या बोलते हैं, कोई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का, राइट, आर्टिस्टिक वर्क है ये। ठीक है, बट दे कैन नॉट क्लेम बिकॉज पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे उसको बैन किया गया था। फिर डिसेंसी एंड मोरालिटी की बात की गई है। ऑफ कोर्स आप जैसे ग्राफिक नॉवेल्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीजें आप पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राफिक नॉवेल्स पब्लिश करने से आपको मना नहीं कर रहा है कोई, बट देयर हैज टू बी अ प्लेस एंड देयर हैज टू बी अ टाइम फॉर दैट, राइट। तो उसके लिए पर्टिकुलर लॉज बनाए गए, यू हैव टू फॉलो दैट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, इसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कोर्ट का कोई डिसीजन है उसको स्ट्रेट अवे वायलेट कर रहे हो तो, और आप यू कैन नॉट क्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये तो स्ट्रेट अवे है। एंड देन लास्ट इज इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस।
आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करके दूसरों को इंसाइट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको बाबरी मस्जिद वाला एग्जांपल देता हूं। उस समय कम्युनल स्पीचेस दी गई थी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए, तो हमारे कार्य सेवक जो थे उस समय, उन्होंने they were incited by those communal speeches given by the political leaders, right? तो ये जो है, ये आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है, गवर्नमेंट इस पे रोक लगा सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे के सारे ग्राउंड्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये कुछ ग्राउंड्स अभी आपको फर्दर केस लॉज में भी एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबलनेस? हमने अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की तो बात कर दी। रीजनेबलनेस का बेसिकली मतलब क्या है? देखो, पहले तो किसी भी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाना होता है ना, तो वो रिस्ट्रिक्शन सही लॉफुल है कि नहीं है लॉफुल, उसके लिए उसके लिए एक टेस्ट लगाया जाता है। इसको 3 फोल्ड टेस्ट मैं बोलता हूं बेसिकली। कोई नाम नहीं है इस टेस्ट का। 3 फोल्ड टेस्ट मतलब 3 पॉइंटर टेस्ट है। ठीक है, पहला चीज, इट हैज टू बी, द लॉ हैज टू बी इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर विच इज इंपोजिंग द रिस्ट्रिक्शन। ये पहला चीज है। दूसरी चीज, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी ओनली ऑन ग्राउंड्स मेंशन्ड। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये स्पेसिफिकली 19(1)(a) या 19(2) के लिए नहीं है, ये इन जनरल 19 में आपको जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्लॉजेस 2 से 6 में दे रखे हैं, उन सब के लिए ही है। ठीक है, क्योंकि अभी हम डिस्कस 19(1)(a) कर रहे, तो मैंने सोचा साथ में करा देता हूं मैं आपको ये। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 to 6। ठीक है, एंड लास्ट इज इट मस्ट बी रीजनेबल इन नेचर। ये रीजनेबल वही है जो आर्टिकल 14 में दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ। रीजनेबलनेस का बेसिकली मतलब क्या है? रीजनेबलनेस का मतलब हो गया, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं उनको जुडिशियली रिव्यूएबल होना चाहिए। आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते। इंदिरा गांधी ने ऐसे लॉज बनाने की कोशिश की थी जहां पे बेसिकली ये बोल दिया गया था दैट दीज लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो स्केड्यूल 9 में बेसिकली जितने भी लॉज डाल दिए जाते हैं, जितने भी प्रोविजंस डाल दिए जाते हैं, दोज लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये आज भी है, राइट? उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी जुडिशियली रिव्यूएबल। तो अगर आपने कोई लॉ बनाया, लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट इनैक्ट किया है, तो उस एक्ट को ये नहीं कह सकते आप कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। then the court must be the final authority to determine if a restriction is reasonable or not। कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली कोर्ट डिसाइड करेगी। तो जुडिशियल रिव्यू होगा तो कोर्ट डिसाइड करेगी। इट विल बी आइदर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, डिपेंडिंग ऑन की लेजिस्लेचर कौन है। रिस्ट्रिक्शन मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी और एक्सेसिव इन नेचर। अब कहने का मतलब ये है, मान लो कि पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन आ गई है एंड कम्युनल स्पीचेस की वीडियोस इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, अब देयर इज नो अदर वे, ठीक है, देयर इज नो अदर वे टू स्टॉप दैट वीडियो। अपने जो हमारी गवर्नमेंट है उसने वीडियो को ओरिजिनल सोर्स से टेक डाउन भी कर लिया है, लेकिन स्टिल द वीडियोज आर बीइंग सर्कुलेटेड। बिकॉज आप भी जानते हो, एक बार कोई चीज इंटरनेट पर चली जाती है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमूव दैट कंटेंट फ्रॉम द वीडियो, फ्रॉम द इंटरनेट, राइट? तो गवर्नमेंट के पास और कोई भी चारा नहीं बचता है अदर देन क्लोजिंग डाउन द इंटरनेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या करना है ना, जब भी आप कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओ तो वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब आर्बिट्ररी यहाँ पे कैसे चेक होगा? सबसे पहले गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इंटरनेट बंद करने के अलावा आपके पास और कोई तरीका था कि नहीं था? द आंसर इज नहीं था, तो वो आर्बिट्ररी नहीं होगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, आपके पास और भी तरीके थे, आपने वो अपनाए नहीं, आपने सीधा क्या किया, सीधा इंटरनेट बंद करने की बात कर दी। आपने इंटरनेट से कंटेंट नहीं रिमूव किया, आपने इंटरनेट बंद करने की सीधा बात कर दी, तो दैट इज आर्बिट्ररी नेचर। ठीक है, एक्सेसिव का अगर मैं एग्जांपल दूं तो फिर होगा कि इंटरनेट बंद किया, तो अब आपने ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है कि इंटरनेट कब तक बंद रहेगा।
द पब्लिक हैज द राइट टू नो कि अगले 24 आवर्स तक बंद रहेगा, 48 आवर्स तक बंद रहेगा. Obviously you can amend the order, you can amend the law, you can amend, you can further issue the order, बट आप ये नहीं कर सकते जैसे कि अभी अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हुआ था. ये जम्मू एंड कश्मीर का केस है, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का केस है. और इसमें जो इंटरनेट बंद हुआ हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर का केस है. और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि आपने इंटरनेट बंद करने का जो ऑर्डर इशू किया है, इसके ऊपर कोई एंड डेट नहीं है, तो दिस इज एक्सेसिव इन नेचर. लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया. अनुराधा भसीन का केस सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में सुना था, 2022 या 2023 का केस है ये. तो कहने का भी मतलब है, तो अनुराधा भसीन का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ. दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, ये मैं डालूंगा भी, इसके ऊपर एक वीडियो भी डालूंगा मैं. अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये केस क्या है, हम इसको डिटेल में एक वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है. सो इट डज नॉट हैव टू बी एक्सेसिव. A balance has to be maintained between the individual freedom provided under Article 19(1)(a) or 19(1) in general and social control provided under Article 19 Clause 2 to Clause 6. बैलेंस क्रिएट करो. ये सेम चीज अनुराधा भसीन में भी बोली गई थी. एंड अगेन जो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 14 है, वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा. दैट इज एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन the law and the objects sought to be achieved. Okay? क्लियर है ये बात? इसके बाद हम बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट केस लॉज की. पहला केस लॉ आता है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. इसके ऐसा ही एक और केस है सकल न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये भी सिमिलर काइंड ऑफ केस है. इसमें भी न्यूज़पेपर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप कितने पेजेस का न्यूज़पेपर पब्लिश कर सकते हो. मुझे ईयर अभी याद नहीं है, यू कैन चेक इट फ्रॉम गूगल. तो हुआ क्या था, बेनेट कोलमैन, ये 1972 सुप्रीम कोर्ट का केस है. इस टाइम पे हुआ क्या था, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ पेपर इन इंडिया. तो मेनी न्यूज़पेपर्स दे स्टार्टेड इंपोर्टिंग पेपर फ्रॉम आउटसाइड. However, it was becoming very difficult for small newspaper agencies to survive as the price of imported paper was quite high. ठीक है. So to maintain a balance in imports, government ने क्या किया? Government issued an order restricting newspaper agencies for publishing newspapers for more than 10 sheets. तो उन्होंने एक लिमिट लगा दी. बेसिकली जो अमीर न्यूज़पेपर एजेंसीज और जो गरीब न्यूज़पेपर एजेंसीज है, उनके बीच में समानता मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये एक ऑर्डर इशू किया. नाउ उन्होंने बोला दैट द सेड ऑर्डर हैज बीन इशूड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक अंडर आर्टिकल 19(6). आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो है ना, दैट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 19(1)(g). दैट इज freedom, that is your carrying out of following any profession or carrying out any trade or business. ठीक है, उसके बारे में ये. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमने आर्टिकल 19(1)(g) जो है, जो दैट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है. इसलिए जनरल पब्लिक ऑर्डर एक टर्म है, जनरल पब्लिक एक टर्म है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये एक टर्म है जो दे रखा 19(6) में, और इसके ग्राउंड पे हमने रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया है ये राइट. ठीक है. बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स को जब आप लिमिट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया दिस ऑर्डर वाज इंसिडेंटली रेस्ट्रिक्टिंग आर्टिकल 19(1)(a) एज वेल. कैसे कर रहा था ये समझो आप. ठीक है, कैसे कर रहा था पहले अब ये समझो. अगर आपको बोला जाए कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को है. ठीक है, ठीक है, सैटरडे, संडे को आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, चुप रहना पड़ेगा आपको. इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नॉट बीइंग वायलेटेड? यस. सिमिलरली आपको बोला जाए कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एज एकेडमिशियंस आपका मेन टूल, हम जैसे एकेडमिशियंस का मेन टूल क्या होता है, हमारा होता है रिसर्च पेपर्स. हमें बोल दिया जाए आप रिसर्च पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 पेज का लिख सकते हो. ठीक है, गवर्नमेंट बोल देती है कि इंडिया में जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस में पब्लिश होंगे, उसके बियॉन्ड नहीं होंगे.
उसके बियॉन्ड अगर कोई लिखेगा तो उसके ऊपर ये पीनल पनिशमेंट लगेगी या वो पेपर ही पब्लिश नहीं होगा. नाउ योर आंसर, try to answer this yourself. Is your freedom of speech and expression not being affected here? It is, right? Because आपका लिमिट किया जा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, लेकिन आपको कंस्ट्रेन लगाया जा रहा है कि आपको इतने में ही करना है. यही चीज न्यूज़पेपर्स के साथ की गई. ठीक है, न्यूज़पेपर्स के साथ यही चीज की गई और बोला गया कि आप सिर्फ 10 पन्नों में ही न्यूज़पेपर छाप सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? The Supreme Court held that in order to maintain an import balance, the state cannot restrict the freedom of speech and expression. 1906 वाला जो उनका रिस्ट्रिक्शन था ना, वो वैलिड था, लेकिन इंसिडेंटली इन्होंने 1901A को भी वायलेट कर दिया और 1902 में इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक करके ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है. ठीक है, तो restricting the publication of newspapers to 10 sheets was found to be violative of Article 19(1)(a). The said order limited the newspaper agencies in expressing their thoughts and disseminating information to a limited number of pages. ठीक है, so this was the judgment in Bennett Coleman. इसके बाद हम आते हैं बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह. इसमें क्या हुआ था, एक मूवी थी बैंडिट क्वीन करके, इसमें एक पर्टिकुलर रेप सीन था. ठीक है, which was argued by the state to be indecent, and thereby the movie makers had two options: either not to release the movie at all or cut that particular scene from the movie. Supreme Court in this case discussed what is decency and provided as a restriction under Article 19 Clause 2. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया, दैट इफ अ सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, if a scene does not arouse any sexual passion in an ordinary reasonable person and the scene is introduced only to establish sympathetic nature of the movie characters, then such a scene cannot be termed indecent or obscene. तो ये जो बैंडिट क्वीन मूवी का ये जो सीन था ना, इसमें बेसिकली क्या था, एक लोअर कास्ट की वुमन थी एंड शी वाज बीइंग सराउंडेड बाय हायर कास्ट मेन. शी वाज टॉर्चर्ड, her clothes were torn and then she was raped by all of them, right? तो वो सीन दिखाया गया था. ठीक है, तो it is a story where a village child was exposed from an early age to the brutality and the lust of man. तो उस पर्टिकुलर सीन में उस वही दिखाने की कोशिश की जा रही थी. तो कोर्ट यही बोलता है कि अगर कोई एक रीजनेबल पर्सन उस सीन को देखेगा, it will not arouse any sexual passion in that person, right? It will not arouse any sexual passion in that person. In fact, वहां पे एक सिंपथी दिखेगी कि एक्चुअली लोअर कास्ट के लोगों के साथ कितना अत्याचार होता है. तो उस मूवी में वही दिखाना चाह रहे थे. ठीक है, मैंने देखो आपके लिए, आप स्क्रीन पर अगर आप देखोगे, एक पर्टिकुलर मैंने ये जो मैंने सेंटेंस उठाया है, पैराग्राफ, ये मैंने स्पेसिफिकली जजमेंट में से उठाया है. रेप एंड सेक्स आर नॉट बीइंग ग्लोरिफाइड इन दिस फिल्म, क्वाइट द कॉन्ट्ररी. It shows what a terrible and terrifying effect rape and lust can have upon the victim. It focuses on the trauma and emotional turmoil of the victim to evoke sympathy for her and disgust for the rapist. ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि that the state who was trying to restrict this film, this particular scene, was unreasonable. Clear? इसके बाद आपका है मोहम्मद अजमल अमीर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. अब ये तो आपको बहुत फेमस केस है, एक्चुअली इन फेमस केस में कहूँगा मैं. 26/11 अटैक्स हुए थे मुंबई में. अगर आप कुछ मूवीज वगैरह देखोगे 26/11 के ऊपर, अब तो काफ़ी मूवीज और सीरीज अवेलेबल है, उसमें आपको मीडिया का रोल दिखाया जाएगा. क्या हो रहा था 26/11 में, जितनी भी ऑपरेशन हो रहे थे उसकी लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी कि पुलिस वाले देखो अब इस वाले गेट से इस होटल में घुसेंगे. यू रिमेंबर देयर वर मल्टीपल लोकेशंस जहां पे टेररिस्ट अटैक्स हुए थे मुंबई में, राइट? तो मेन आपको याद होगा ओबराय होटल में हुआ था, तो ओल्ड ओबराय होटल, राइट, वहां पे हुआ था. तो वहां पे ऑपरेशंस का पूरा जो पुलिस, जो हमारे स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स वगैरह थे, ये जो इनका जो अभियान चल रहा था मुंबई सिटी को बचाने का, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था. मीडिया के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी. मीडिया क्या कर रही थी बेसिकली, अब मीडिया को एक्चुअली खुद भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए था अपने आप को, जो उन्होंने नहीं किया. ठीक है, तो मीडिया भी क्या कर रही थी, वो लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी कि देखो अभी ये पुलिस वाले इधर वाली गेट से घुसेंगे, अभी ये टेररिस्ट को पकड़ के लेके आ गए, उन्होंने 2 टेररिस्ट को मार दिए.
ये सारी इंफॉर्मेशन लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। और फिर क्या हो रहा था कि ये टेलीकास्ट पाकिस्तान में जो इस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर था वो बैठ के देख रहा था, फिर वो वहां से सैटेलाइट फोन से टेररिस्ट को, यहाँ जो मुंबई में जो टेररिस्ट थे उनको फोन करके वो बता देता था कि पुलिस इधर से आ रही, आप लोग भाग जाइए यहाँ से। एंड दिस एक्चुअली हैम्पर्ड द प्रोसेस। 2 दिन तक ये पूरा प्रोसेस चला था, 2 दिन तक पूरा ऑपरेशन चला था, ठीक है, 2 या 2 से 2.5 दिन चला था, कुछ कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने बेसिकली बोला, एक्चुअली ये ओबिटर डिक्टम है इस केस का, that the coverage of Mumbai terror attack by the mainstream electronic media has done much harm to the argument that media houses can self-regulate themselves. Thus, the court directed the government to make regulations in this behalf. So presently we have a regulation for the media, but there is no sanction for its violation, and therefore this regulation is toothless. तो अब इसके ऊपर एक इसका मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, एक्चुअली क्या है, हुआ क्या था कि इस तरह के केसेस पहले भी हुए हैं, नॉट टेररिस्ट अटैक के केसेस, बट इस तरह के केसेस पहले भी हुए हैं जहां पे मीडिया के रोल को क्रिटिसाइज किया गया है। तो हर बार ये बात की गई है कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉ या कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, लेकिन हर बार केस में मीडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते थे एडवोकेट्स, वो यही आर्गुमेंट देते थे कि नहीं सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होगा, इसीलिए एंड मीडिया हाउसेस दे हैव दिस, द जर्नलिस्ट दे हैव देयर ओन एथिक्स एंड मोरालिटी, तो दैट एथिक्स एंड मोरालिटी विल हेल्प द मीडिया हाउसेस सेल्फ रेगुलेट देमसेल्व्स। लेकिन 26/11 के इंसिडेंट के बाद से जिस तरीके का मीडिया का सो कॉल्ड आपका एथिक्स एंड मोरालिटी ने आपको सेल्फ रेगुलेट कर दिया है, कुछ भी नहीं दिखा वैसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, दैट दिस आर्गुमेंट दैट द मीडिया कैन सेल्फ रेगुलेट देमसेल्व्स, their conduct of live telecasting the 26/11 operation, ठीक है, is actually harming this argument. They're self harming their own argument in previous cases, ठीक है। therefore यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने बोला गवर्नमेंट को, एक्चुअली लेजिस्लेचर को वो फोर्स नहीं कर सकते, पर लेजिस्लेचर को उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी, बेसिकली रिक्वेस्ट भी नहीं कह सकते हो आप, मतलब बोला कि यू शुड, दैट इट इज एन एडवाइजरी इशू किया कि दैट द लेजिस्लेचर शुड एक्चुअली थिंक अबाउट मेकिंग सम गाइडलाइंस ऑन इट फॉर द मीडिया टू रेगुलेट इन, स्पेशली इन सच केसेस, क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग रूल्स बने भी, गाइडलाइंस बनी भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ब्रॉडकास्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने ना, उसके ऊपर कोई क्या बोलते हैं, कोई पीनल प्रोविजन नहीं है, ठीक है, कि अगर आप इन ब्रॉडकास्टिंग रूल्स और रेगुलेशंस या गाइडलाइंस को वायलेट करते हो तो आपके ऊपर ये पनिशमेंट इम्पोज की जाएगी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो वो पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है टूथलेस हो गया। टूथलेस हो गया मतलब कि इट कैन नॉट बाइट यू, राइट। फिर आपका आता है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अमर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वाला केस आप अब देखो, अब हमारे जितने भी केसेस बचे हैं वो शॉर्ट में बचे हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बट अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। ये जो केस है, ये दोनों केसेस में बेसिकली बोला गया दैट टेलीफोन टैपिंग विदाउट ऑथराइजेशन इज इलीगल, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी। ऐसे राइट टू प्रिवेसी 2011 में एग्जिस्ट नहीं करती थी, but still they said that it is a violation of right to privacy and specifically freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). Then you have Bijoy Emmanuel versus State of Kerala case. इस केस को हम लोग नेशनल एंथम केस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, देयर वर सम जेहोवाज विटनेस स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अ स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में नेशनल एंथम चल रहा था। जेहोवाज विटनेस का बेसिकली क्या है ना, दे आर नॉट सपोज टू सिंग एनीथिंग अदर देन देयर सम ओन what should we say, prayer or something, right? I'm not aware, so I'm not gonna comment upon it, right? So Jehovah's Witness का basically क्या है उनका, कि वो नेशनल एंथम या कोई और गाना नहीं गा सकते, वो अपनी उनकी जो प्रेयर है, उनकी जो प्रथा है, सिर्फ उसी को वो फॉलो कर सकते हैं। तो स्कूल में नेशनल एंथम हो रहा था, इन बच्चों को फोर्स किया गया कि अब नेशनल एंथम गाओ, तो ये बच्चों ने नेशनल एंथम नहीं गाया, एंड फॉर दिस दे वर रेप्रिमांडेड बाय द स्कूल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट every citizen has a right to remain silent within Article 19(1)(a), ठीक है। Right to remain silent is implicit in right to freedom of speech,
जितना अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है, हर समय बोलती थोड़ी रहोगे आप, ठीक है। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट दिस इज राइट टू रिमेन साइलेंट। सॉरी फॉर माई वेरी बैड हैंड राइटिंग बट आई होप लेजिबल होगा। इसके बाद आपका आता है इन रेफरेंस नॉइज पोल्यूशन केस ऑफ 2005 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच इंप्लाइज राइट नॉट टू लिसन एंड नॉट टू बी फोर्स टू लिसन। तो ये हो गया राइट नॉट टू लिसन, दो चीजें हैं यहाँ पे, एंड राइट नॉट टू बी फोर्स्ड टू लिसन, ठीक है। So basically, a person can decline to read a publication or switch off a radio or a TV. No one has a right to trespass on the mind and ear of another person. Otherwise, it would lead to auricular and visual aggression. ठीक है, मैं टर्म है auricular and visual aggression, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोशन पिक्चर एसोसिएशन टू 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कंपेल्ड स्पीच की बात की गई है, ठीक है, इसको लिख लो कंपेल्ड स्पीच केस। बस आपको ये याद रखना है कि किस में क्या बोला गया है, ठीक है। जो केसेस मुझे डिटेल में कराने थे वो मैंने डिटेल में करा दिए हैं। बाकी ये जैसे डिटेल में मैंने आपको वो कराया ना, बेनेट कोलमैन वाला केस, ठीक है, फिर अजमल कसाब वाला केस, ठीक है, वो सब डिटेल में कराए मैंने। तो उनको आपको ये तीन केसेस, बेनेट कोलमैन, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल और मोहम्मद अजमल आमिर कसाब वाला केस, ये तीनों आपको डिटेल में याद रखने हैं। बाकी जो केसेस है ये मैं आपको वन वर्ड में बता रहा हूं, बस उतना याद रखो आप, ठीक है। कंपेल्ड स्पीच केस है, इसमें कंपेल्ड स्पीच इज बेसिकली अ मस्ट कैरी प्रोविजन इन, तो कंपेल्ड स्पीच इज नोन एज अ मस्ट कैरी प्रोविजन इन स्टैट्यूट, रूल और रेगुलेशन, and it can be an infringement of the right to free speech except to the extent permitted under article 19(2). मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए। So a nature of a must carry provision is a determining factor. If such a provision further involves decision making, then it will not amount to violation under article 19(1)(a). मतलब मान लो कोई ऐसा लॉ बना दिया गया जहां पे आपको बोला जा रहा है that you are compelled to disclose this information, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे एक डिस्क्रिशन दिया जा रहा है दैट अगर आप चाहते हो कि आप नहीं करो तो ठीक है, तो इस तरीके का लॉ वैलिड होगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मूवी हॉल्स का। मूवी हॉल्स में क्या हुआ था, एक टाइम पे बोला गया कि नेशनल एंथम आपको प्ले करना जरूरी ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस लॉ इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a). यू कैन नॉट कंपेल द मूवी हॉल ओनर्स टू प्ले नेशनल एंथम। ऐसा कहीं भी कोई नहीं लिखा हुआ है कि नेशनल एंथम जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, या नेशनल एंथम जो प्ले नहीं करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग ऑब्वियसली, बट आप नेशनल एंथम प्ले करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। तो ये कंपेल स्पीच का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट यू कैन नॉट कंपेल देम। हाँ, आपने एक लॉ बना दिया दैट नेशनल एंथम शुड बी प्लेड बिफोर एवरी मूवी इन अ मूवी हॉल। अब उसके बाद आपने डिस्क्रिशन मूवी हॉल ओनर्स को दे दिया कि आपको करना है कि नहीं करना है, वो अलाउड है। तो जब भी इस तरीके के लॉ बनते हैं ना, तो उसमें एक होता है मस्ट कैरी प्रोविजन जो आपको करने के लिए बोला जाता है। उस मस्ट कैरी प्रोविजन में जिस पर्सन के ऊपर वो इम्पोज किया जा रहा है वो मस्ट कैरी प्रोविजन में अगर उस पर्सन का डिस्क्रिशन भी अलाउड है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, अदरवाइज वो वायलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के। क्लियर। इसके बाद आपका केस है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। इसमें बेसिकली यही बोला गया था दैट राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब RTI, बाद में RTI एक्ट बना, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). So this was the last case. I'm done with part 1 of this video.
आई डोंट नो इसके बाद आर्टिकल 19 का एक पार्ट और होगा कि दो पार्ट और होगा, बिकॉज अभी आई हैवंट मेड दैट वीडियो, बट प्रोबेबली पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बनेगा इसका। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक शॉर्टर वीडियोस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, बट आर्टिकल 19(1)(e एक बार में खत्म करना जरूरी था, इसीलिए मैंने इस पार्ट में खत्म किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। सारे केस लॉज भी मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। प्रॉपरली इसके नोट्स बनाइए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन हियर हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करोगे, आपको वहां पे फ्री केस लॉज मिलेंगे, फ्री नोट्स मिलेंगे, आपको फ्री क्विजेस अटेम्प्ट करने को मिलेंगे मेरे वीडियोस के बेसिस पे, एंड ऑब्वियसली मेरे सारे अपडेट्स आपको वहां पे मिलते रहेंगे। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। आपको वहां ये जो अभी मैंने वीडियो पढ़ाया है ना आपको, इसके नोट्स मैं बना के अभी अपलोड कर दूंगा वहां पे। ठीक है, तो आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो द डिस्क्रिप्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, कृपया ज्वाइन कर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे टेलीग्राम पे @law, सॉरी ये @ है, अगर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहते हैं तो उस पर भी मेरा नाम @law by निलय कुमार के नाम से है, ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम पे। आप सर्च करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे डीएम करने का ऑप्शन या फिर ईमेल करने का ऑप्शन मेरे आपके पास है, राइट? सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।